Hello children, today we are going to understand in electricity Ohm's law. Okay, what is exactly Ohm's law? So, the relationship between the current, that is I, passing through a conductor and the potential difference, that is the voltage, resulting across two ends. Okay, what is the relationship between both? Means what is the relationship between electric current and voltage? That relationship as explained by Ohm's law. Okay, he was German scientist. His name was George Ohm, 1789 to 1854. Okay, so first of all, this scientist shows the relationship between the electric current and the voltage. So simply I tell you one thing, as the flow of current has increased, at the same proportion voltage also increased. In another word, you can say there is a direct relationship between the current and the voltage. As current has rise, voltage also rise. If current has falls, voltage also falls. So with the help of graph, you can show like this way. Suppose 2, 4, 6, 8. Okay. Ampere is electric current. Electric current, measure in ampere. Okay, this is current. And voltage. Let's assume 1, 2, 3, 4. You can say like this way, in 1 voltage, electric current is 2, or you can say the electric current is 2, or 2 voltage is 1. In 4 current, ampere, 2 voltage, 6, 3, 8, 4, and the graph will move like this way. I got this. समझ में आया? ठीक है? Okay. So this is the Ohm's law. So Ohm's law shows the relationship between the electric current and the voltage. So in definition, we can say that in a definite physical situation, see, this word is most important. In definite physical situation, the electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. It means electric current is simultaneous to voltage. In another word, you can say V equal to IR. Okay, and it shows the resistance means अवरोध इलेक्ट्रॉन के मूव जब होते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ बीच में अड़चनें आती हैं. वो अड़चनों को, रेजिस्टेंस को हम लोग वोल्टेज और करंट के रिलेशन से बता सकते हैं. सो वी कैन से दैट R इक्वल टू V अपॉन I. Okay, the SI unit of resistance is volt per ampere, which is known as the ohm. Okay, its symbol is omega, like this way. Its symbol is omega, so 1 ohm equal to 1 volt per ampere. तो ओहम का जो लॉ है बच्चों, बराबर है, वो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट जब पास ऑन होता है तो कितना रेजिस्टेंस उसमें आता है. रेजिस्टेंस को मैं हमेशा ऐसे समझाता हूँ कि भाई आप जब किसी खाली हाईवे पे गाड़ी चला रहे होते तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट आती है, बहुत तेज जाते हो आप लोग. लेकिन जैसे ही कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बराबर है, ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, कुछ हो गया, क्या होता है, आपकी स्पीड क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है. तो सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा होता है तो इनको भी रेजिस्टेंस का, अवरोध का सामना करना पड़ता है.
एंड ड्यू टू दैट रीजन जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है, और उस रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करने का काम ओम का लॉ करता है, एंड दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। रेजिस्टेंस का सिंबल ये है बच्चों, ओके, ठीक है। सो द मेटेलिक सब्सटेंस सच एज कॉपर एल्यूमिनियम हैव लेस रेजिस्टेंस, therefore we use the copper wire as a conducting wire. The resistance of insulator is very large, like plastic, wood, dry wood. The alloy like nichrome, it is the combination of nickel and chromium. It used the resistor wire. The resistor used instrument like TV, radio, etc. are made to mixture of carbon and graphite. Okay. So the resistance of any conductor substance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of the cross section. अब रेजिस्टेंस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बराबर है उसकी लंबाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, यानी जितनी ज़्यादा लंबाई होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और वो कितना मोटा है, तार कितना मोटा है, वायर कितना मोटा है, बराबर है, कंडक्टर कितना मोटा है, उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना कम रेजिस्टेंस लगेगा, और जितना पतला होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, वाइसी वर्सा। ओके, सो यू कैन से रेजिस्टेंस इक्वल टू, रेजिस्टेंस इज L, so R simultaneous 1/A, so resistance equal to R 1/A। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम, ओके, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम, सो रेजिस्टेंस इक्वल टू ओम मीटर। इज इट क्लियर? अब आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मेटल होगा, जितने ज़्यादा मेटल होंगे उसमें रेजिस्टिविटी उतनी ही ज़्यादा कम होगी, सॉरी, अलॉयज में जो है रेजिस्टेंस उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इंसुलेटर में तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, एंड ड्यू टू दैट रीज़न इंसुलेटर का यूज़ इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग यूज़ करते नहीं हैं, बराबर। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में हम लोग करंट फ्लो करने के लिए यूज़ करते नहीं है, वी कैन से लाइक दैट। वे आगे एक और टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो जरा उसको भी ध्यान से अंडरस्टैंड करो। अब ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, बराबर है, ये आपको दो पैटर्न में अंडरस्टैंड देखने को मिलता है, एक सीरीज कनेक्शन में देखने को मिलता है और दूसरा पैरेलल में देखने को मिलता है। अब इसका रीजन क्या है? सीरीज कनेक्शन का कैसा है, आप लोगों ने घर में जो है दिवाली के टाइम में इलेक्ट्रिक का वो बल्ब बुझ वाली लाइटें देखी होंगी, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीरीज कनेक्शन। मुझे रहता है ये बल्ब 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 बल्ब। अब मान लो यहाँ से एक वायर टूट गया, ऑटोमेटिकली आप देखिए सारे वायर गुड होने के बावजूद भी बंद हो जाएंगे। ओके, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? जस्ट लाइक अ वाटर फ्लो, बराबर है। मान लो जो है क्या कहते हैं, इस पाइप में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये बाकी के दो तो चालू रहेंगे। ओके, सो उसके सर्टेन एडवांटेजेस भी हैं और सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओके, सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। इसको हम लोग देख लेते हैं जरा। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज्ड बाय कनेक्टिंग द रजिस्टर इन सीरीज, hence the current decrease, thus to the total current of the circuit series connection is resistor useful. Moreover, the fuse is connected in series with 230 volt as well as in electric appliances and it domestic electric connection. Okay, अच्छा, if electric appliances can connected in series, it applied voltage is divided and 3 bulb or operating 240 volt, then each one is getting 80 volt, while in parallel connection, okay, like this way। तो वापस फिर से ज्वाइंट हो जाते हैं।
यहाँ पे इक्वल प्रपोर्शन में जो है आपका करंट फ्लो होता है। ओके, इन ऑल दैट 240 वोल्टेज सप्लाई तो प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं, ये तो उसका बेनिफिट है। ठीक है, तो इतना जो है हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रिक करंट के अंदर अंडरस्टैंड करना है, और मोस्टली मैंने सब कुछ इसके अंदर कवर किया है। नथिंग हैज रिमेन्ड इन दैट। आप लोग के लिए मैं और ज़्यादा जो है PDF वगैरह बना के उसके अंदर दूसरे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं दैट ऑल्सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, बराबर है। मे बी एक और हमारा लेक्चर इसके ऊपर जाएगा एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, चलिए बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।